चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ तक आए थे अपन। चलो, तो फिर आगे क्या करना है? क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं अभी, है ना? आई होप कल की चीजें सब कुछ क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1। A is equal to matrix 0 1 हाँ, A is equal to matrix 0 1 2 2 3 4 then 4 5 6 and B जो मैट्रिक्स है that is 1। अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट। 1 0 0 0 1 0 then 0 0 1 एंड हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों को फाइंड आउट करना है 3a माइनस 4b। चलो कोशिश करो हाउ टू फाइंड इट आउट। मैंने तुम लोग को बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 3a ना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स a को, 4 5 6 minus 4 into b is what? 1 0 0 then yes 0 1 0 0 0 1। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा अपन को। क्या हो जाएगा फिर ये? 3 into 0 0 3 into 1 3 3 into 2 6 3 into 2 6 3 into 3 9 3 into 4 12 3 into 4 एक मिनट 3 into 4 12 3 into 5 15 3 into 6 18 minus 4 into 1 4 4 into 0 0 4 into 0 0 4 into 0 0 4 into 1 4 0 0 0 4। यस, सो व्हाट इट इज। अभी तुम लोग ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो, इतना सब पागलपंती करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द स्टेप। ओके, प्रॉपरली 3 लिखो, फिर वो मैट्रिक्स लिखो, फिर 4 लिखो, ये जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो क्या है फिर ये? 0 माइनस 4 3 माइनस 0 3 6 माइनस 0 6 6 माइनस 0 6 9 माइनस 4 5 12 माइनस 0 12 12 minus 0 12 15 minus 0 15 18 minus 4 18 done. Okay, so this is your answer. Chalo, can you tell me the answer of second question? What is that? A is given to you 1 2 3 4, B is given to you 2 4 3 5 and 4a minus 3b plus c equal to O है। ये 0 नहीं है, O है। O मतलब नल मैट्रिक्स। ये क्या है? नल मैट्रिक्स। चलो कोशिश करो, टेल मी। So how to proceed for this particular question? Yes, 4 into a, okay, minus 3 into b plus c we don't know and O is what? Null matrix. O is null matrix. अभी नल मैट्रिक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने यही क्यों लिया? क्योंकि बाकी सारे मैट्रिसेस इस ऑर्डर के हैं। समझ में आई बात? बाकी सारे मैट्रिसेस इस ऑर्डर के हैं इसलिए। सो यस, अभी डायरेक्टली लिख सकते हो 4 into 1 4 minus 3 into 2 6 4 into 2 8 minus 3 into 3 9 4 into 3 12 minus 3 into 4 12 4 into 4 16 minus 3 into 5 15 plus c is equal to 0 0 0 0. Okay, so how much is this? Minus 2 minus 1 0 1 plus c 0 0 0 0. Okay,
So C is equal to 0, 0, 0, 0, minus, minus 2, minus 1, 0, and 1. Okay, so C is equal to what? 0 minus of minus 2, it's plus 2. 0 minus of minus 1, it's plus 1. 0 minus 0, 0. 0 minus 1, it's minus 1. So it becomes what? Option A. It is what? Option A. A आ रहा है, B आ रहा है? अच्छा, B आ रहा है. Correct. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. Third one. Can you try? Matrix multiplication. We have seen this. 2 minus 3, 4, 5. B is equal to 1, 5, 6 minus 7. AB is equal to what? चलो कोशिश करो. Tell me the answer. Okay, we just need to multiply. AB is what? 2 minus 3, 4 and 5. B is 1, 5, 6 minus 7. This is how much? First row, first column. 2 into 1, 2. Okay, 2 into 1, 2. Minus 3 into 6, minus 18. First row, second column. 2 into 5, 10. Minus 3, this is plus 21. Then second row, first column. 4 into 1, 4. 5 into 6, 30. Second row, second column. 4 into 5, 20. Minus 35. How much is this? It is minus 16. This is 31. Now, this is 34. And this is how much? Minus 15. Okay, so this is A. That's all. Question number 4. A is equal to 3 minus 1, 1, 2. And we need to find out A square. चलो कोशिश करो fast. A square मतलब A into A. तो अल्टीमेटली तुम लोग को करना क्या है? A को A के साथ मल्टीप्लाई करना है. आई होप मल्टीप्लीकेशन का फंडा भी क्लियर है. यस, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. Yes, option D. Okay. Okay, let's check it out. Let's check it out. A into A square. First row, first column. 3 into 3, 9. 1 into minus 1, minus 1. Okay. Then first row, second column. 3 into 3, 1 into 2. Okay. Next. Next is second row, first column. Minus 3 into 3, minus 3. 2 into minus 1, minus 2. Second row, second column. Minus 1 plus 4. How much is this? 8, 5, minus 5 and
3. So it becomes this thing. Yes. So which option is this? Which option is this? 8, 5, minus 5, 3. So it's D option. Okay. Now question number 5. Question number 5 करने से पहले question number 6 का आंसर बताओ मुझे. 1, 2, 5 and 3, 4, 5. Yes. Tell me the answer of 6th question. Chalo fast. Yes, fast. Yes, how much is this? Okay. Okay, so yes, let's check it out. First row, first column. Okay, first row, first column. 1 into 3. First row, second column. 1 into 4. First row, third column. 1 into 5. Then second row, first column. 2 into 3. Second row, second column. It's 2 into 4. Second row, third column. It's 2 into 5. Then after that, third row, first column. 5 into 3. Third row, third column. 5 into 4. Third row, fourth column. It's 25. Okay, that's the answer, which is that option. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25. It's option A. Very good. Okay, so that is the answer. Next, question number 7. Sorry, fifth करते हैं अभी फिलहाल. Okay, let's go with fifth one. A is equal to what? 3 minus 4, 1 minus 1. Then value of A raised to n is what? That's the question. Okay, value of A raised to n is what? That's the question. Okay, so yes, देखो options क्या क्या है अपने पास? What are the options? Options are 3n minus 4n, n and n. Then option B is what? 2 plus n, 5 minus n, n minus n. अब ये ऑप्शन टू क्वेश्चन जाने वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ. Just need to go option to question. 1 raised to n minus 1 raised to n, and D is what? None of these. Okay. So yes, tell me fast. Then how should I proceed? देखो, A raised to n अपन को find out करना है ना? A raised to n जो है वो अपन को find out करना है. तो फिर yes, A raised to 1. क्या होगा? n equal to 1 लेना पड़ेगा ना? A raised to 1 मतलब n equal to 1 है. If n is equal to 1, I am getting A raised to 1, which is nothing but A. है ना? तो कोई भी ऑप्शन में 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए? A मिलना चाहिए. I mean सारे ऑप्शंस में 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए? 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे A मिलना चाहिए. तो फिर yes, 3 into 1, it is becoming 3 into 1 minus 1 into minus 4 into 1, 1 1. So A ऑप्शन तो नहीं मिलेगा. 3 into 1 3 आता, minus 4 into 1 minus 4 आता, n equal to 1 1. तो भैया हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो कैंसिल. B ऑप्शन. क्या ये 2 plus n, that is 2 plus 1. 5 minus n, मतलब 5 minus 1. This is 1, this is minus 1. How much I am getting? 3 4 1 minus 1. Is it right?
All right. Okay. Next, C option. 3 raised to 1 minus 4 raised to 1, 1 raised to 1 minus 1 raised to 1 is equal to 3 raised to 1 is 3 minus 4 raised to 1 is minus 4. This is 1 minus 1. What I'm getting? I'm getting the same thing. तो भाई B and C में से कोई तो भी एक आंसर हो सकता है. अब क्या करेंगे? अब n equal to 2 ट्राई करेंगे. अब क्या करेंगे? n equal to 2 ट्राई करेंगे, है ना? n equal to 2 ट्राई करके देखते हैं अभी. So let's try out n equal to 2. Okay. तो फिर a raised to 2 is equal to a raised to 2 is equal to a into a. A is what? 3 minus 4 1 minus 1. Next a is what? 3 minus 4 1 minus 1. Okay. So first row, first column. 3 into 3 9, 9 minus 4 5. First row, second column. 3 into minus 4 minus 12. Minus 12 plus 4, it's minus 8. Then second row, first column, 1 into 3, 3, 3 minus 1, 2. Second row, second column, 1 into minus 4 plus 1 minus 3. So ऑप्शन में चेक करके देखते हैं कहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे ये सीन मिलेगा. कहीं पे मिल रहा है क्या? यस, देखो सही किया ना अपन ने कैलकुलेशन. यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 3 9 minus 4 5 आया. First to second column 3 into minus 4 minus 12 plus 4 it's minus 8. Okay, then second row first column 1 into 3 3 minus 1 2. First row second row second column 1 into minus 4 minus 4 plus 1 it's minus 3, है ना? So yes, this is what, this is equal to a square. मतलब n equal to 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे ये सीन मिल रहा है. तो n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं मिलता है क्या अपन को सेम सीन. मतलब ऑप्शंस में बी एंड सी ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा ना अभी, क्योंकि ए तो वैसे भी आंसर नहीं है अपना. सो ए तो एनीवेज आंसर नहीं है. बी ऑप्शन चेक करके देखते हैं. n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया 2 plus 2 4, 5 minus 2. Okay, 5 minus 2, n equal to 2 and minus 2. क्या समझ में आ रहा है? ये क्या मिला अपन को? 4 मिला, 3 मिला, 2 and minus 2. दूर दूर तक मैच नहीं खा रहा है. गलत. बी भी नहीं, सी भी नहीं आएगा. देखो, none of these is the answer for this particular question. 3 raised to n, 3 raised to n. N is what? 2, na? So 3 raised to 2 minus 4 raised to 2, 1 raised to 2 minus 1 raised to 2. It becomes what? 9 16 1 plus 1. नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है बोला था. तो D is correct answer. Okay, D is what? Correct answer. So this is your question number 5. Now let's move to question number 7. 6th हो गया. हाँ, चलो कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर करने की. बहुत ही आसान है. फोर 5 2 2 minus 3 5. चलो check it out. Again option A. Okay, देखते हैं फिर. First row, first column. Okay, first row, first column. Yes, you can rejoin. So 1 into 4 4. First row, second column 1 into 5 5. First row, third column 1 into 2 2. Then second row, first column minus 2 into 4 minus 8. Second row, second column it's minus 10. Second row, third column it's minus 4. Then third row, first column 3 into 4 12. Third row, second column 3 into 5 15. Third row, third column it's 6. 2 minus 3 5.
ओके अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 5 इंटू -3 -15 2 इंटू 5 10 second row first column -8 into 2 -16 -10 into this is +30 -4 into 5 it's -20 okay next third row this column 12 into 12 into 2 24 15 into -3 -45 6 into 3 30 okay हाँ बोलो if I proceed from behind से proceed करना ही नहीं है वही तो behind से proceed करना ही नहीं है multiplication is not commutative you can't proceed like that okay you can't proceed like that मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव इसीलिए लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था ये चीज कि यहाँ पे उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3 सेम चीज नहीं होती यहाँ पे ठीक है तो यस -7 plus 10 it's +3 this is how much -36 plus 30 it's -6 it's 54 minus 45 okay 54 minus 45 it's 9 okay so am I getting the same answer कुछ गड़बड़ तो नहीं कैलकुलेशन में let me check it out कुछ गड़बड़ है क्या नहीं सही है so option is the answer so पीछे से प्रोसीड करना ही नहीं है बिल्कुल भी ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ी देर बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 करो चलो is what 1 3 5 अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया क्या बात है बढ़िया पहले क्वेश्चन नंबर 9 करो पर ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 अपन करेंगे साथ में -1 7 6 a plus x is unit चलो कोशिश करो यस इसका आंसर आया किसी का है कोई ओके केजल का आ गया आंसर केजल का आंसर आ गया यस ओके तो a plus x is equal to यूनिट मैट्रिक्स ठीक है a is what this thing 1 2 -1 3 4 7
516 516 plus x is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so x is equal to what? Subtraction होगी सीधी सीधी, minus 1 2 minus 1 3 4 7 5 1 6. Okay, so this is how much? 1 minus 1 is 0, 0 minus 2 minus 2, 0 minus of minus 1 plus 1, 0 minus 3 minus 3, 1 minus 4 minus 3, 0 minus 7 minus 7, 0 minus 5 minus 5, 0 minus 1 minus 1, 1 minus 6 minus 5. अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? C3R3 मतलब ऑप्शंस में गड़बड़ है क्या कुछ? नहीं सही है सब कुछ. अच्छा ओके, यहाँ पे ओके ओके 1 minus 6 here it should be minus 5 ना. क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन इज रॉन्ग और ऑप्शंस में गड़बड़ है. यस जो भी है ये आंसर सही है. ये यही आया तुम लोगों का? यही आंसर आया सबका? प्लीज टेल मी, वी गॉट द सेम आंसर? तो भूल जाओ ऑप्शंस को, ठीक है? आंसर आना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. 1 alpha 1 1 3 2 0 5 1 0 3 2 alpha 1 minus 2 equal to null matrix. हाँ लेते क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं. वेट. सो यस, नल मैट्रिक्स अल्फा इक्वल टू व्हाट? कोशिश करोगे? चलो कोशिश करो. लेते क्वेश्चन 8 भी लेते हैं. वेट. यस आ रहा है, सॉल्व करते हैं. फिर अटक रहे हो कहीं पे? यस टेल मी फास्ट. थोड़ा सा लेंदी है, मतलब लेंदी एज इन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा चीजों को, है ना? चलो देखते हैं फिर कितना आता है अभी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 alpha into 0 0 1 into 0 0. First row second column 1 into 3 3 alpha into 5 5 alpha 1 into 3 3.
First row, third column. 1 into 2, 2. Alpha into 1, alpha. 1 into 2, 2. Okay. Next. Done. Okay, यही था उसका order जो भी है. Into alpha 1 minus 2 equal to null matrix. Null matrix को थोड़ी देर के लिए substitute मत करो, ठीक है? Okay, अब चलो first row, first column. क्या हो जाएगा फिर? 1 into alpha, alpha. अरे 1 into alpha, alpha. 3 plus 3 is what? 6. 6 plus 5 alpha into 1. 2 plus 2, 4. 4 plus alpha into minus 2. It's minus 2 into 4 plus alpha equal to, सॉरी ये सब ऐड हो जाएंगे ना, तो ये एलिमेंट 0 आएगा. देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे ना जनरली लोग ऑर्डर में मिस्टेक करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कैसे. वो जनरली ऐसे ये विदाउट प्लस वाला ऐसे ऐसे लिख देते हैं. नहीं, ऐसे नहीं करते ना अपन जब भी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तब 1 into 1 1, अल्फा into 0 0, 1 into अल्फा 0, सबको ऐड करते हैं. तो यहाँ पे नाइंसाफी क्यों फिर? First row, this row and this column. 1 into alpha, alpha. 6 plus 5 alpha into 1, 6 plus 5 alpha. 4 plus alpha into minus 2, 4 plus. इन सबको ऐड करना पड़ेगा ना, है ना? इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. समझ में आ रही बात? देखो अपन रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं. कोई रो एंड कोई कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम उनको ऐड करके एलिमेंट बनाते हैं, है ना? तो यही अपन ने एक एलिमेंट बनाया है, ठीक है? Alpha plus 6 plus 5 alpha minus 8 minus 2 alpha 0. So alpha plus 5 alpha 6 alpha 6 alpha minus 2 alpha, it's 4 alpha. 4 alpha minus 2 equal to 0. So 4 alpha minus 2 equal to 0. So alpha equal to half. That's the answer. Alpha equal to half is the answer. समझ में आ रही बात? यस, अल्फा इक्वल टू हाफ इज दी. अच्छा नहीं है क्या ऑप्शन में? माइनस हाफ आ रहा है उनका, माइनस हाफ आ रहा है आंसर उनका. ऐसे कैसे पॉसिबल है? लेट्स चेक इट आउट वंस. 1 into 1 1, अल्फा into 0 0, 1 into 0 0, 1 into 3 3, 5 into alpha 5 alpha, 1 into 3 3, 1 into 2 2, 5 into ये चलो सही है. Alpha 1 minus 2, okay. 1 into alpha, alpha plus. This is 6 plus 5 alpha. 6 plus 5 alpha into 1, 6 plus 5 alpha. 4 plus alpha. 4 plus alpha into minus 2, it's minus 2 into 4 plus alpha. And ये 0 है. तो क्या हो जाएगा? Alpha 6 5 alpha minus 8 minus 2 alpha. So it's 6 alpha minus 2 alpha, it's 4 alpha. 6 minus 8, it's minus 2. This is 0. Why is this 0? Because it is null matrix. So it is half. Half is the answer. Done. Okay. Half is the answer. Done. Okay. आगे बढ़ते हैं फिर अभी. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास? a b माइनस b a, देन अपने पास है a b b माइनस a. ठीक है. अरे क्वेश्चन नंबर 8. वेट हैव ए पेशेंस, हैव ए पेशेंस. मैं पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करा के ले रही हूँ रे. ओके, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रही हूँ. इजी क्वेश्चन सॉल्व करके ले रही हूँ. अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 करने वाले. यस, टेल मी फास्ट हाउ टू सॉल्व दिस. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम. ओके, a into a square plus b into b square. First row, second column, a into b, ab, b into minus a, minus ab. Okay. Second row, first column, minus b into a, minus ab, a into b plus ab. Second row, second column, minus b square, minus a square. है ना? So how much is this? A square plus b square, 0, 0. This is what? Minus b square, minus a square. So it's option A. Okay, option A is the answer. Easy था ये, कुछ नहीं था, बस लेटर्स थे ना. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 8, कुछ भी नहीं है उसमें. देखो
कुछ भी नहीं है, मतलब सॉल्विंग है थोड़ा बहुत बट इजी है। a plus b is given to you. a plus b कितना दिया हुआ है 1 0 0 1 1 0 1 1. a minus 2b is given to you. It's minus 1 1 0 minus 1 1 0 minus 1. ओके तो फिर यस अपन को फाइंड आउट करना है a. अपन को फाइंड आउट करना है a. अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही सॉल्व करना है। इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं अपन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा फिर ये 2a plus 2b is equal to 2 into 1 0 1 1. तो क्या हो गया फिर ये 2a plus 2b is equal to 2 0 2 2. Okay, and how much I am having a minus 2b minus 1 1 0 minus 1. ऐड कर दो दोनों को 3a is equal to 2 0 2 2 minus 1 1 0 minus 1. Okay, so yes 3a is equal to what 1 minus 2 minus 1 it's plus 1 0 plus 1 it's plus 1 2 plus 0 and 2 plus minus 1 it's plus 1. Okay, so a is equal to what 1 by ये 1 by 3 कहाँ से आया by the way, ये 3 जो है डिवाइड हो गया ना यहाँ पे, तो क्या बचा अंदर 1 1 2 1. ओके तो a क्या हो गया फिर 1 by 3 1 by 3 2 by 3 1 by 3. So it becomes what? It becomes 1 by 3 1 by 3 2 by 3 1 by 3. So it is option C. कहाँ पे अटक गई थी केजल, तो बोल अभी, तो कहाँ पे अटक गई थी, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी? Yes, at what point you are facing the problem? बताओ जल्दी, कहाँ पे इशू हो रहा था, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी? अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इजी है ना, पर क्यों इतना जाने का डीप में सब्स्टिट्यूट वगैरह करने, उसमें कितने सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं अपन को, है ना, इतना नहीं करना है. ओके सो यस नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. A is equal to 0 2 2 3 3 2 1 0 and B is equal to 0 1 2 3 2 1 3 2 1. यस उन्होंने क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए देखो. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कैन यू टेल मी क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कैन यू टेल मी क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यस ऑप्शन डी पक्का करेक्ट. देखो अभी अगर मैंने b इंटू ए परफॉर्म की, b का ऑर्डर कितना है 2 रोज 4 कॉलम्स, a का ऑर्डर कितना है 2 रोज 4 कॉलम्स 2 क्रॉस 4. b का ऑर्डर कितना है 3 रोज 2 कॉलम्स 3 क्रॉस 2. ओके 3 रोज 2 कॉलम्स. दिस इज व्हाट a का ऑर्डर कितना था? यस व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ a? इट्स 2 रोज 4 कॉलम्स 2 क्रॉस 4. b का ऑर्डर 3 रोज 2 कॉलम्स 3 क्रॉस 2. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है.
A into B does not exist. Does not exist. What about B into A? B into A. What is order of B? 3 cross 2. What is order of A? 2 cross 4. ये दोनों same है? Yes. That means what? Exists. Option क्या हो गया? D हो गया. है ना? इनके कॉलम्स और इनके रोज, इनके कॉलम्स और इनके रोज सेम होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज नहीं. Okay. That was your question number 12. Now let's move to question number 13. Find the values of x and z if find the values of x and z if 2 into x, y, z minus 9 into minus 2, 3, 1, 0 equal to 18i. चलो कोशिश करो फटाफट. Tell me the answer. Try to tell me the answer. Yes. 13th question, it's 2 into x plus y. Sorry, 2 xyzb we are having. And we need to find out, yes, x and z values. Okay. So what it is, 2 into x, 2x, 2 into y, 2y, 2 into z, 2z, 2 into p, 2p. Minus, it's 18, minus 18 actually. 27, it's 9, it's 0 is equal to 18 into 1001. Okay. So yes, यहाँ पे minus minus, it would be plus 18, 2y minus 27, 2z minus 9, 2p minus 0 equal to 18 into 1, 18, then 0, 0, 18. Okay, so equating these two matrices, 2x plus 18 equal to 18 by equality of matrices, no? Equality of matrices, so it's 2x equal to 0, x equal to 0. Then 2z minus 9 equal to 0, 2z minus 9 equal to 0, z is equal to 9 by 2. Done. So it's option C. Done. X is equal to 0, z is equal to 9 by 2. Okay. So this is option C. Question number 14. If A and B are two matrices such that A plus B and AB are both defined, A plus B and AB are both defined, then A and B
आर टू मैट्रिसेस नॉट नेसेसरीली ऑफ सेम ऑर्डर। बताओ फिर क्वेश्चन नंबर 14 में पहला ऑप्शन करेक्ट है क्या? उन्होंने बोला है a प्लस बी एंड ए बी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि ए प्लस बी ये दोनों सेम ऑर्डर के होना जरूरी है क्या? नहीं ना, सेम ऑर्डर के होना सॉरी जरूरी नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला है, तो ये गलत है। ओके, क्यों गलत है? क्योंकि भैया वो तो सेम ऑर्डर के होनी चाहिए, अदरवाइज एडिशन तो पॉसिबल नहीं है। एडिशन कैसी होगी? अगर वो सेम ऑर्डर के नहीं है तो एडिशन कैसे होगी? नहीं होगी एडिशन। ओके, नेक्स्ट, ए एंड बी आर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। A and B are of square matrices of same order. Yes. Yes, B option. A and B are of square matrices of same order. Obviously B option. C option क्यों नहीं? C option क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि अगर C ऑप्शन पॉसिबल होता तो एडिशन होगी नहीं होगी हम बोल नहीं सकते। C ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोला है। C ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। क्या बोला उन्होंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। ओके, तो सी ऑप्शन में तो गलत है ना फिर ये। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, ये तो सिर्फ उन्होंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बोला। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन उसका एडिशन थोड़ी ना पॉसिबल है। एडिशन पॉसिबल है क्या? नहीं। ओके, सो दैट इज व्हाई वी विल गो विद व्हाट ऑप्शन बी। दैट इज व्हाई वी विल गो विद ऑप्शन बी। Okay, that's your answer. ठीक है, क्वेश्चन 15, मैट्रिक्स 0 -5 7। ओके, मैट्रिक्स 0 -5 7 5 0 11 -7 11 0। अरे यस, बोलो जरा ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है क्या? देखो, सिमेट्रिक आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होता है जब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स जब इक्वल होते हैं। ये जो एलिमेंट्स है ना, जो मैंने लोकेशन अभी भी यहाँ पे बताए हुए हैं, ये एलिमेंट्स अगर सेम रहे तो तुम्हारा मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये जो मैंने गोल गोल करके दिखाए हुए, स्क्वायर स्क्वायर ट्रायंगल ट्रायंगल, ये जो प्लेसेस है ना, इन प्लेसेस पे जो भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो एलिमेंट्स सेम होंगे तो अपन इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अदरवाइज ये स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा गारंटी नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले तो डायगोनल 0 है क्या चेक करो। सबसे पहले डायगोनल 0 है क्या पहले चेक करो। डायगोनल तो 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने का भी तरीका है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? 5, यहाँ पे -5, यहाँ पे -7, यहाँ पे +7, यहाँ पे +11, यहाँ पे -11, है ना? तो ये सब क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक के लक्षण है ना? डायगोनल भी 0 है, इसके नंबर्स भी, उनका साइन भी उल्टा हो रहा है, -7 का +7, +11 का -11, है ना? इनके साइन भी क्या हो रहे हैं? उल्टे हो रहे हैं। तो फिर यस, यहाँ पे ये किसके लक्षण हो गए? स्क्यू सिमेट्रिक के लक्षण हो गए, है ना? आंसर क्या होना चाहिए फिर इसका?
स्क्यू सिमेट्रिक मतलब तुम ट्रांसपोज नहीं भी निकालोगे तो भी तुम लोगों को देख के पता चल जाएगा कि भैया ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके और सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक मतलब बताया मैंने तुम लोगों को, ये जो लोकेशंस है यहाँ पे तुम्हारे जो नंबर्स है वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। ओके वो प्लेसेस पे जो भी नंबर्स है वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चले। Transpose of rectangular matrix is, yes, transpose of रेक्टेंगुलर का ट्रांसपोज क्या होगा, रेक्टेंगुलर ये होगा है ना, रेक्टेंगुलर का ट्रांसपोज क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। अंडरस्टूड। स्क्वायर तो नहीं होगा ना वो, यस okay, so transpose of rectangular matrix is rectangular matrix. Question number 17, चलो बताओ जल्दी इसका आंसर, 17 का आंसर। Okay, so yes, question number 17. Transpose of row matrix is column matrix. मान के चलो ये रो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर लिया, ये भी इस तरीके से भी ट्रांसपोज रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, तो ये क्या हो गया फिर, ये इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम करना है बस हमें, तो क्या हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, सीधी सी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 18, बोलो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर फटाफट। यस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ए का ऑर्डर m क्रॉस p है, b का ऑर्डर p क्रॉस n है, तो फिर ऑर्डर ऑफ बी ए, एक्चुअली प्रॉब्लम इज विद द क्वेश्चन, मतलब उन्होंने ना ए बी पूछना चाहिए था मेरे हिसाब से, दे शुड आस्क यू ए बी, ओके, क्योंकि ए के कॉलम्स एंड बी के रोज सेम होते हैं ना, ए के कॉलम और बी के रोज जो है सेम होने चाहिए ना, अगर तुम बी ए परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, ये p क्रॉस n और m क्रॉस p हो जाएगा ना, तो कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके कॉलम्स और इसके रोज सेम ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो बी ए नहीं पूछना चाहिए, तो देयर इज अ मिस्टेक इन क्वेश्चन, इट शुड बी ए बी। ओके, तो अब ए बी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, तो m क्रॉस n वुड बी इट्स फाइनल आंसर, m cross n would be its final answer. Understood? Yes, समझ में आ रही बात।
m क्रॉस n होना चाहिए इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। चलो बोलो आगे। हाँ, और एक गलती तुम लोग कर रहे हो यहाँ पे, ए बी का ऑर्डर n क्रॉस n है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बी ए का ऑर्डर n क्रॉस n होगा, जरूरी नहीं है ये चीज। ओके, सो बी केयरफुल, डोंट मेक सच कंक्लूजन्स। चलो क्वेश्चन नंबर 19, A and B are matrices, then which from the following is true? कौन सा ट्रू है? यस, ओके, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं फिर। a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, ये ट्रू है? नहीं। एडिशन के केस में ये चलता है, एडिशन के केस में वी कैन से दैट यस a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस, सॉरी ये जो है ये गलत है, सॉरी दिस इज व्हाट, गलत। क्यों? क्योंकि ए के एडिशन के केस में कॉम्बिनेटिव लॉ फॉलो होता है। ओके, एडिशन के केस में कॉम्बिनेटिव लॉ फॉलो होता है मैट्रिक्स का। बी ऑप्शन क्या है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, ये भी गलत है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी गलत है ना। सी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। ओके, दिस इज करेक्ट। AB is not equal to BA, ठीक है। क्वेश्चन 20, वन टू थ्री, 3 4 5, अल्फा प्लस 2 8 10 इज सिंगुलर। चलो याद करो मैंने सिंगुलर के बारे में क्या बताया था, बोलो जरा सिंगुलर के बारे में मैंने क्या बोला था, यस टेल मी फास्ट। सिंगुलर के बारे में मैंने क्या बोला था? सिंगुलर के बारे में मैंने क्या बोला था? मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोला जाता है? मैट्रिक्स को सिंगुलर तब बोला जाता है जब उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? 0 होगा, है ना। सो मैट्रिक्स को सिंगुलर तब बोला जाता है जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। ओके, जब उसका डिटरमिनेंट 0 होगा तब अपन उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। ओके, सो 1 into 4 5 8 10, 3 का उल्टा -3, 2 3 8 10, ओके। अल्फा प्लस 2 2 3 4 5, ओके, 2 3 4 5। नेक्स्ट 4 into 10 40, -8 into 5 40, -3 into 2 into 10 20, -3 into 8 24, प्लस अल्फा प्लस 2। डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए? डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए ना, क्योंकि वो सिंगुलर है।
डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. 2 into 5 10 minus 4 into 3 12 is equal to 0. This is 0. This is minus 3 into minus 4. This is minus 2 into alpha plus 2 equal to 0. तो yes, क्या होगा फिर ये +12 minus 2 alpha minus 4 equal to 0. So what it is? 12 minus 4, 8. So it becomes minus 2 alpha minus 8. Alpha is equal to 4. So this is what option done. This is your question number 20. Now question number 21. समझ में आया? ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर एक ही चीज याद रखो. सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते वक्त इसका साइन चेंज करना मत भूलो. अगर वो माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर वो प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा. दो चीजें याद रखनी है अपन को, ठीक है? बाकी सब सही है. So 4 into 10 it's 40, 8 into 5 it's 40, minus 3 into 20 ये 24, alpha plus 2 it's 10, it's minus 12, so it becomes minus 2, alpha plus 2 it's minus 12, and so on. Done. Question 21. 21 is what? A is equal to what I'm having? 1 3 3 4 and a square minus alpha a minus 5i equal to O. तो अल्फा कितना होगा? कोशिश करोगे? कोशिश करोगे? चलो कोशिश करो फटाफट. Yes. Alpha equal to 5. Okay, let's check it out. कितना आता है फिर ये? A square ना, तो A square मतलब A into A. So what it is? 1 3 3 4 into 1 3 3 4. कितना हो गया फिर ये? First row, first column. 1 into 1, 1. 3 into 3, 9. 9 plus 1, 10. First row, second column. 1 into 3, 3. 3 plus 12, 30, 15. 3 plus 12 is 15. Second row, first column. 3 into 1, 3. 3 4s are 12. 12 and 3, 15. Second row, second column. 3 into 3, 9. 9 and 16, 25. Okay. इसका क्या हो गया अभी पता नहीं. 5i भी चाहिए अपन को. 5i. How much is 5i? It's 1 0 0 1 5 0 0 5. So a square minus alpha a minus 5i equal to null matrix ना. तो a square कितना आया अपना? 10 15 15 25 minus alpha into a कितना आया अपना? a is how much? ओहो, स्क्रीन को क्या हो गया? Okay, alpha into a 1 3 3 4 1 3 3 4. 5i is how much? 5 0 0 5 equal to null matrix na. 0 0 0 0. Okay, so how much is this? 10 15
15, 25 minus alpha into 1, alpha, alpha into 3, 3 alpha, alpha into 3, 3 alpha, 4 into alpha minus 5, 0, 0, 5 equal to null matrix. ओके तो फिर चलो अभी 10 माइनस अल्फा माइनस 5, 15 माइनस 3 अल्फा माइनस 0, 15 minus 3 alpha minus 0, 25 minus 4 alpha minus 5, 0, 0, 0, 0. Okay, this and this. So 10 minus alpha minus 5. So 5 minus alpha equal to 0. So alpha equal to 5. कहीं से भी उठाओ रिलेशन, कहीं से भी उठाओ, इन दोनों को रिलेट करके देखो, you will get 5. इन दोनों को रिलेट करके देखो, you will get 5. इन दोनों को रिलेट करके देखो, you will get 5. Everywhere you will get 5. Okay, so no need to worry about it कि आंसर गलत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. आगे बढ़े अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. चलो let's move to next part now. Inverse of matrix. Inverse of matrix. Okay. So देखो पहली बात तो इनवर्स का मतलब समझो. कोई भी नंबर का इनवर्स मतलब होता क्या है. मान के चलो 4 नंबर है, 4 का इनवर्स क्या होगा 1/4 होगा, है ना. मान के चलो तुम्हारे पास 5 नंबर है, 5 का इनवर्स क्या होगा 1/4. एनी डाउट इन दिस. तो ऑन दी सेम लाइंस अगर मैट्रिक्स ए है मेरे पास तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या होगा 1/a. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब अपन 1/4 करते हैं तो अपन डिवाइड कर सकते हैं 1 को 4 से. क्या बोला मैंने, जब अपन 1/4 की बात करते हैं तब मैं एक्चुअली 1 को 4 से डिवाइड कर सकती हूँ. आई विल गेट आंसर एज 0.25 है ना. जब मैं 5 का इनवर्स लेती हूँ तो 1/5 इज व्हाट 0.2. तो आई विल गेट आंसर एज 0.2. But in case of 1/a, in case of 1/a, I cannot divide that 1 by 5. Okay, and actually that is not 1, that is I. So ये जो है डिविजन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल. कोई भी मैट्रिक्स को तुम डिवाइड करो, जैसे कि मान के चलो सपोज b/a किया मैंने, तो ये b मैट्रिक्स को a से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है. अपन को b को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दैट केस. ओके, सो दैट इज द वे. सो दैट मीन्स व्हाट, कोई भी नंबर का इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, बट इनवर्स ऑफ मतलब रेसिप्रोकल फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इनवर्स की व्यवस्था की हुई है, ऐसे मान के चलो. ओके, सो यस देखो फिर अभी तो एक बेसिक कंडीशन, मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल होगा रे. मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल होगा, जब ये A जो है ये इनवर्स exists only if determinant of A is not equal to 0. अदरवाइज डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और पूरा खेल खत्म. डिनोमिनेटर में 0 आने के बाद अपन डिवाइड कर, 0 डिनोमिनेटर में चलता ही नहीं है बिल्कुल भी. चलता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता, 0 डिनोमिनेटर में चलता ही नहीं है अपन को. ओके, तो वैसे ही तुम्हें अगर पूछा गया 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, तो विच इज नॉट डिफाइंड. देयरफॉर अगर मैट्रिक्स के इनवर्स का एग्जिस्टेंस तुम लोगों को चाहिए, देन यू शुड गो बाय व्हाट, you should go for the condition. You should check for the condition that determinant of A should not be equal to 0. अगर वो determinant of A 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कौन से टाइप का मैट्रिक्स हो गया ये, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर.
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कौन से टाइप का मैट्रिक्स हो गया ये, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मतलब सिंगुलर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर होता है, सिंपल सी बात है। ओके तो मतलब अगर हमें ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस चाहिए तो हमारा मैट्रिक्स होना चाहिए नॉन सिंगुलर। हमारा मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? यस तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इस इनवर्स को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। ओके इस इनवर्स को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो ए इनवर्स जो है, अभी एक्चुअली देयर आर टू मेथड्स ए इनवर्स फाइंड आउट करने के। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो अपने मॉड्यूल में नहीं इंक्लूड किया है उन्होंने। ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो तरीके होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन and column transformation. ओके एंड ए इनवर्स फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका है अपना, उसको अपन बोलते हैं एडजॉइंट मेथड। ओके ए इनवर्स फाइंड आउट करने का और एक तरीका है अपने पास, इसको अपन बोलते हैं एडजॉइंट मेथड। तो ये अपन के पास सिलेबस में है, ये चीज अपने सिलेबस में नहीं है। ये 12th में जिनको मैथ्स था ना उनको ये चीज याद आ रही होगी। ओके उनको ये दोनों मेथड्स थे, 3-4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता था उस पे, है ना। तो अभी अपने पास दोनों मेथड्स नहीं है, बस एक ही मेथड है विच इज एडजॉइंट मेथड। ठीक है सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। ओके तो फिर एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला है उसका, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, इनवर्स एडजॉइंट मेथड से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देयर इज ए फॉर्मूला, फॉर्मूला इज व्हाट, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 into a inverse is equal to 1 upon determinant of a into adjoint of a. Okay so this is the फॉर्मूला। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमें फाइंड आउट करते आता है, हमें क्या फाइंड आउट करना जरूरी है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना जरूरी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं पहले उस पे फोकस करो। ठीक है यस adjoint of A is what basically? It is transpose of cofactor matrix. It is what? Transpose of cofactor matrix. Okay, it is transpose of ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग नहीं बोला मैंने, मैंने रॉन्ग बोला ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग है, मैंने ये ऐसे बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ऐसे बोला है मैंने, ये तुम्हारे सिलेबस में है। सुनो चीजों को सुनो, क्रॉस दिख रहा है इसका मतलब रॉन्ग है ऐसा नहीं है। ओके डोंट गेट कंफ्यूज्ड यार। ओके सो एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो फिर यस अब कोफैक्टर क्या है सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, व्हाट आर दी कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलता है अपन को माइनर्स से, is what from minors। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं ये कोफैक्टर मैट्रिक ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है सिचुएशन। ओके मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।
वहां पे जो भी मैट्रिसेस है ना उनका एग्जांपल लेती हूँ, फिर वो इनवर्स फाइंड आउट करके बताती हूँ, ठीक है। सो एक टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो मैं ले रही हूँ, टाइप 3 का क्वेश्चन की हेल्प ले रहे हैं, बस अपन क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो भी मैट्रिसेस है ना उनकी हेल्प ले रहे हैं अपन। 2 1 1, चलो ये मैट्रिक्स में सॉल्व करके बता रही हूँ, आगे का तुम लोग को सॉल्व करना है। हाँ 3 2 1 4 3 2, ओके 4 3 2, ओके। तो फिर अभी अपने पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट इट्स ए इनवर्स, फाइंड आउट इट्स ए इनवर्स। तो अगर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो फिर हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट से पता चलेगा कि भैया ये मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ओके। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट कितना आता है देखते हैं फिर, ये 2 1 1 3 2 1 4 3 2, 2 into 2 4, अरे यार 2 into 2 4, 3 into 1 3, 3 इन -3 हो जाएगा ना, ये -3 into 1 into 2 2, 3 into 1 3, plus 4 into 1 into 1 1, 2 into 1 2, ओके। कितना हो जाएगा 4 into 3, 4 minus 3 is 1, so 2 into 1 is 2, minus 3 into 2 minus 3 is what, -1, plus 4 into, this is -1, 2 plus 3 minus 4, so this is how much, 1, this is what, 1. So determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists, okay, A inverse exists. So yes, now let's move to adjoint of A. adjoint of A कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए अपन पहले माइनर्स क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द माइनर्स। तो अगर मुझे M11 फाइंड आउट करना है, ये चीजें तुम ओरली कर सकते हो बाद में, ओके बाद में ये सब चीजें तुम लोग ओरली कर सकते हो। एंड सच बताओ मैट्रिक्स से ना हार्डली 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ओके इक्वेशंस से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये बात है। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, क्या बचा 2 1 3 2, 4 minus 3 1, ओके। M11 कैसे फाइंड आउट किया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, दैट इज M11। सो Mij का एक्चुअली डेफिनेशन ही वही है, क्या डेफिनेशन है उसका, डिलीटिंग ith row and jth column, ये उसका डेफिनेशन ही है, ओके। सो यस M11 हो गया। अब M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है अपन को, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करना है, 1 1 3 2 -1, ओके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है, 1 1 3 2, 1 into 2 2, 3 into 1 -3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है, 1 1 2 1, 1 minus 2 is -1, ओके। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 4 2, 6 minus 4 it is 2, okay, करेक्ट। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 1 4 2, 2 into 2 4 minus 4 is equal to 0। ये ओरली करते आता है, ये तुम ओरली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यू कैन डू दिस ओरली,
ओके और आसान ओरली मतलब ये माइनर्स अभी देखो मैंने प्रॉपरली डिटर्मिनेंट लिखा है, मैंने प्रॉपरली उसका सब्ट्रैक्शन शो किया है। अपन को इतना सब नहीं करना है एग्जाम में, अपन शॉर्टकट लगाएंगे। समझ में आ रही बात? ओके अपन शॉर्टकट लगाने वाले हैं। M22 then M23 second row third column, second row third column 2 1 3 1 2 into 1 2 3 into 1 3, it's minus 1. Then third row third column, sorry third row first column, third row first column 3 2 4 3, 3 3s are 9 minus 4 2s are 8, it becomes 1. Okay, third row second column, third row second column 2 1 4 3, 2 into 3 6, 4 into 1 4, this is what 2. Okay, now third row third column, third row third column, so it becomes what 2 1 3 2, 4 minus 3, it becomes 1. ओके सो ये क्या बन गया अपना माइनर्स का पूरा सिचुएशन। डिलीट करना है अपन को, वो सब डिलीट करते करते फिर मैट्रिसेस बनाने हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं उसके। अब आता है यहाँ पे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होता है देखो, कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज़ टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ए आई जे कैसे मिलता है -1 रेज़ टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है तो फिर यस A11 कैसे मिलेगा -1 रेज़ टू 1 प्लस 1 M11, this is what plus 1, M11 is how much 1, so it becomes 1. A12 -1 raised to 1 plus 2 M12, this is how much -1, M12 is how much -1, so it becomes plus 1. It becomes what plus 1. तो बस अभी ये ऐसे कोफैक्टर्स बनेंगे। ओके चलो ठीक है, मैं पहले फाइंड आउट कर ही लेती हूँ कोफैक्टर्स, फिर मैं शॉर्टकट बताती हूँ कैसे करना है उसको, इसके बाद वाला शॉर्टकट बताती हूँ फिर मैं। A13 is what -1 raised to 1 plus 3 M13, M13 तो ये -1 raised to 4 है ना, -1 raised to 4 मतलब क्या हो गया फिर ये -1 raised to 4 मतलब +1 हो गया इनटू M13 कितना है -1, -1. A21 is what A21 it's -1 raised to 2 plus 1 M21, -1 raised to 3 is -1, M21 is what +2, it becomes -2. A22 -1 raised to 2 plus 2 M22, it's +1, M22 is what 0 equal to 0. M23 it's -1 raised to 2 plus 3 M23, it's -1, M23 is how much -1, so it becomes 2. A31 is -1 raised to 3 plus 1 M31, this is what +1, M31 is what +1. Okay next A32 -1 raised to 3 plus 2 M32, it is -1 into M32 is 2. A23 is 1, sorry A23 is 1, correct, so it's -2. A33 is what -1 raised to 3 plus 3 into M33, so it's 1 आ गया ये। ठीक है तो अभी इसका मैट्रिक्स बनाते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा A11 is 1, A12 is 1, A13 is -1, A21 is -2, A22 is 0, A23 is +1,
A31 is +1, A32 is -2 and A33 is +1, इस तरीके से। अब इसका जो ट्रांसपोज आएगा, ओके, ट्रांसपोज ऑफ दिस थिंग, ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स है। व्हाट इज दिस? कोफैक्टर मैट्रिक्स है। उसका ट्रांसपोज जो है वो एडजॉइंट होता है, उसका ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है? एडजॉइंट होता है, ठीक है। तो फिर यस, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ ए। सो इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम बनाओ, जॉइंट, ओके। नेक्स्ट, तो अब ये हो गया जॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज व्हाट? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 1 था, एडजॉइंट क्या है? 1 -2 1 1 0 -2 -1 1 1। ये हो गया एडजॉइंट, डन। ए इनवर्स, ओके। तो अब मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे कि अपन के पास ना यहाँ पे एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? देखो, तुमने माइनस फाइंड आउट किए ना, तुम लोगों ने एक बार माइनस फाइंड आउट किए ना, कि उन्हीं का मैट्रिक्स बनाओ। देखो यहाँ पे ध्यान दो, माइनस फाइंड आउट करने के बाद मैट्रिक्स बनाओ। क्या मैट्रिक्स बनाया मैंने? M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ओके। मैंने माइनस का ही मैट्रिक्स बनाया और मैंने क्या किया? सिर्फ ये जो पोजीशंस है ना, इनके साइन चेंज कर दिए, ओके। क्या कर दिया इसका मैंने? देखो, इसका मैंने कर दिया +1, इसका मैंने कर दिया -2, इसका मैंने कर दिया +1 और इसका मैंने कर दिया -2। मिल गया मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स, मिल गया। क्या किया मैंने? माइनर्स जो फाइंड आउट किए थे ना, माइनर्स जो फाइंड आउट किए थे, उन्हीं को मैंने, उन्हीं का मैट्रिक्स बनाया। बस एक डिफरेंस क्या किया मैंने? ये वाला नंबर, ये जो नंबर्स है, इनके सिर्फ मैंने क्या किए? साइन चेंज कर दिए। उनके मैंने क्या कर दिया? बस साइन चेंज कर दिया, नथिंग एल्स, डन, ओके। ये क्या हो गया तुम्हारा? कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये सब झंझट करने की जरूरत अपन को नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गेट इट, ओके। एंड ए इनवर्स इस तरीके से मिल गया फिर अपन को, ओके। समझ में आ रही बात? यस, ओके। चलो फिर एक मैट्रिक्स करोगे, खुद से कोशिश करोगे? यस, चलो ट्राई इट आउट फास्ट। वो जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में C23 C32 वगैरह दिया हुआ है ना, ऑल दैट इज कोफैक्टर। यस, B is what? 1 -1 0 3 2 0 0 1 2। चलो कोशिश करो फास्ट, इसका इनवर्स अपन को फाइंड आउट करना है। चलो फास्ट, यस। सो हमें क्या चाहिए फिर? माइनस चाहिए। पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं यार, है ना। पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी? 1 3 0 -1 2 1, ओके, 0 0 2। सो इट्स 1 into, अरे यार ठीक है, 1 into शॉर्टकट लगाते हैं, 1 into 2 into 2 4 -0 -3 into 1 into 0 0 0 plus 0 into 0 -0, ओके। तो कितना हो गया फिर? ये 4 हो गया, डन, 4 हो गया। अब माइनर्स चाहिए अपन को। M11 मतलब क्या करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट।
क्या हो गया 2 into 2 4 सीधा लिख दिया मैंने। हाँ ज्यादा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया 10 आ रहा वो 1 into 4 कैसे 10 भाई 3 into 0 minus 0 0 into सब कुछ 0 कुछ बचा ही नहीं 10 कहाँ से आएगा 4 आएगा। कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई -2 -0 3 के केस में। ओहो 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 थर्ड 3 के केस में बोल रहे हो क्या 3 के केस में। हाँ अब सही बोला आयुषा ने सही बोला। ओके केजल ने बताया था करेक्शन करेक्ट। सो ये आएगा 4 + 6 10 समझ में नहीं आ रहा था पर ओके M11 M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो गया ये -2 -0 ओके M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 ही आएगा ये तो। M21 second row first column 6 -0 okay second row first column na second row first column 6 then second row second column second row second column 1 into 2 2 -0 okay then after that third row first column third row first column क्या हो गया ये 3 into 1 3 -0 third row second column third row second column ओके ये क्या हो गया फिर 1 -0 third row third column third row third column 1 into 2 2 minus of -3 5 ओके सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम नहीं किया क्या अपन ने यस सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये हो गया 0। तो अब इसका बनाना है अपन को मैट्रिक्स और वो भी कोफैक्टर डायरेक्ट अपन को क्या बनाना है कोफैक्टर ओके तो फिर यस M11 4 M12 -2 M13 0 M21 6 M22 2 M23 0 M31 3 M32 1 M33 5 क्या बोला था मैंने बस इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे और इस जगह पे साइन चेंज कर दो तुम्हें डायरेक्टली कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसको माइनस कर दिया 0 का तो कुछ साइन होता नहीं है इसको माइनस कर दिया सारी साइन चेंज। एनी डाउट टू एनीवन किसी को कोई डाउट है क्या यस किसी को कोई डाउट हो तो बोलो ठीक है ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अभी okay so A is equal to sorry adjoint of A is equal to रो को कॉलम कर दो रो को कॉलम कर दो रो को कॉलम कर दो adjoint of A okay अब A inverse is equal to 1 upon determinant of A is equal to adjoint of A 1 upon determinant of A is determinant of B actually ना determinant of B चाहिए अपन को ये this is B inverse this is B तो क्या आया फिर ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया 10 आया है ना और एडजॉइंट कितना आया फिर ये 4 2 0 -6 2 0 3 -1 5 इस 1/10 को तुम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो ओके 1/10 को तुम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो समझ में आ रही बात यस किसी को कुछ डाउट है तो बोलो इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी
ठीक है, तो अभी अगला टॉपिक शुरू होगा एक्चुअली अपना हाँ, अगला टॉपिक शुरू होगा अपना। तो इनवर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? यस, इज देयर एनी डाउट इन फाइंडिंग आउट इनवर्स? 2/2 का एक बार लेते हैं एग्जांपल। ओके, शॉर्ट एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल, एक 2/2 का एग्जांपल लेते हैं। 2 3 4 5 ऐसा कुछ अपने पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है अपने पास ये, और अपन को फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। अपन को फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। ओके, तो फिर यस क्या करेंगे अपन? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले देखते हैं। 2 into 5 10 minus 12, so it becomes -2. Okay, it becomes what? -2. तो फिर यस अपन को क्या चाहिए? माइनर्स m11 कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दो, आई गेट 5 m11। उसके बाद m12, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का झंझट ही नहीं है, सीधा नंबर मिल जाता। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4। ओके, स्किप कर देने का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, डन। अब इसका बनाना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनता है इसका? 5 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे साइन चेंज करते वक्त किसका साइन चेंज करोगे पता है? इन दोनों का साइन चेंज करोगे। देखो जिनके ऑड एडिशन आती है ना, देखो 2 + 1 3 आता है, 2 + 1 3 आता है, इसलिए मैं जहां पे ऑड एडिशन आता है उनका साइन चेंज करते हैं अपन। यहाँ पे ऑड एडिशन आ रहा है ना, तो 4 और 3 का साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए। इट जॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसपोज, दैट इज 5 - 3 - 4 2 का ट्रांसपोज, सो इट बिकम्स 4 रो का कॉलम बन गया और रो का कॉलम बन गया। डन। ओके, रो का कॉलम और रो का भी कॉलम बन गया। तो अब ए इनवर्स चाहिए अपन को, सो 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू जॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कितना? -2। जॉइंट ऑफ ए कितना है? 5 - 4 - 3। डन, दैट्स ऑल। ओके,